जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 534th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today we are going to discuss Nifty, Bank Nifty, stocks, commodities, Forex, cryptocurrency, and we will have an updated look on the markets after today's decline. So let me welcome all of you. Good evening, namaskar, and let us start today's session. दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, let me just remind you that the next training is scheduled for April 16th and 17th, and registrations are open from tomorrow. So if you are interested, you can WhatsApp on the number given in the description box, and you can join for this training. You can register. Upon registration, you will be added in the Telegram group for a period of 3 months, where we discuss markets throughout the day, and we do a lot of feedback session and all these things. So, what is happening in the global equity market? So, right now there is some decline coming in the US and the European markets. That is pretty natural after last week's stellar rally. So, some sort of profit booking is taking place, but overall the view is bullish, and any correction that comes, it's a buying opportunity. Now, having said this, let us have a look at the forex market. So right now, I can see that the British pound is slightly up, and this is the preferred pair on the long side. Yesterday, I discussed all the four pairs that we trade on the NSC forex futures market, and the British pound is one currency. Which is especially important to us right now because we have long position in this. And today we have also taken long trade in the JPY INR. So two currencies are there where we have taken the long trades. One is British pound and second is the JPY INR. So I'm expecting both these pairs on the NSC to move higher towards their target. Rest, nothing much is happening in the forex market. Now, if I talk about the commodities market, so right now we can see crude oil is up by a big 4%. It has it had gone till almost 84.76, and this is the zone where we have initiated one short trade. So right now that short trade is slightly in profit. Today's expiry. So if you are uh, taking this short trade home, make sure that the current contract uh, stays below 8350. अगर ये 8350 के नीचे की क्लोजिंग है तो पोजीशन को लेके जाओ. सेम स्टॉप लॉस जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन किया है, और अगर 8350 के ऊपर क्लोज होता है तो इसे कट करके जाएंगे. सो ऑल दोज हु हैव टेकन trades based on the trade idea given in the telegram group, please note this: closure below 8350 is a desired one, and only below that we should carry, or else it can be slightly riskier. Okay, nevertheless, this is a good zone from where one pullback should come near 7900 sort of a level. So you can expect 4 to 600 points decline in the crude oil. लेट अस हैव अ लुक एट द मेटल्स. सो मेटल्स में इस समय कुछ खास नहीं है. गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज स्टिल struggling near 51,600 700 level. So gold is looking okay. You can take home a long position in gold with a stop loss of say around about 51,200 kind of a level. I like this structure. This is a very nice move. I think a small long trade should be seen in the gold market. So that's all in the commodities space. What is happening in Bitcoin? Bitcoin is down by almost 400 points down. So this is again a buying opportunity for a potential move till 44,000 and 45,000, as we have discussed in yesterday's session. So today, I would like to take as many stock queries as possible, because yesterday we have already discussed the macro views and all those things. Now, लेट अस मूव टुवर्ड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की. निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, एक बार नेचुरल गैस को भी चेक कर लेते हैं. सो नेचुरल गैस में आई थिंक एक अच्छी अपमूव जो है सुबह जो है 375. आई थिंक दैट लेवल इज गुड इनफ. प्रॉफिट बुकिंग जो है इसमें कर लेना चाहिए यहाँ पे. आई थिंक नेचुरल गैस को स्क्वायर ऑफ करके ही जाना चाहिए. कल अगर ये गैप अप करता है सपोज 378 के ऊपर, तो फिर शायद हम फ्रेश बाय करें. आई थिंक नेचुरल गैस में इस समय लेट अस नॉट चेज. आई थिंक यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, बिकॉज देर इज
again the resistance going to come at 390. So I think यहाँ पे एक बार निकल जाना चाहिए. Let us talk about Nifty and Bank Nifty. So Nifty की बात करें तो आज जो है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है वीकली मॉब लेवल से. निफ्टी में जो है एक 250 पॉइंट की डिक्लाइन आई है 17,325 17,350. This is the most critical level that was discussed in yesterday's session, and आज के intraday के लिए 17,265 this level was shared in the yesterday analysis. So today 17,265 it looked that it will hold in the opening hours, and it was looking good to go near 17,440 level, but then it broke below that, came to retest, traded throughout below the VWAP, and then you got one nice decline of 150 points. So I think traders should have benefited by yesterday's analysis. Even if you went long over here, this should have got your 50 point 60 point stop loss, but this was the place to trigger the trade on the lower side, which is to take the short trade, and this should have given very nice and easy and cheesy profit of 150 points. Why Nifty went below 17,200? The culprit was Bank Nifty. Bank Nifty जो है अगेन जैसा कल मैंने समझाया था कि बैंक निफ्टी एक बार नीचे आना चाहिए, इवन इफ इट गोज हायर, वन मूव टुवर्ड्स द retest of this level of 35,800 is on cards, and that is what has happened. So निफ्टी की क्या प्लानिंग है कल के लिए, इसे एक बार डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी, and then we will take the stock queries. Now see, as per the weekly charts, it is very clear that Nifty needs to cross the weekly mob level for any up move to continue. Overall, market is very bullish. There is no second opinion on that. And any decent correction that comes, especially towards 16,900 and all those levels, these are very super duper buying opportunities in the market. So in the short term 17,350 ये आप देख सकते हैं, ये वीकली चार्ट के हिसाब से मैसिव रेजिस्टेंस है यहाँ पे, पिचफॉक का रेजिस्टेंस है, एंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन दिस इज द लेवल वेयर रेजिस्टेंस शुड कम. ये आ चुका है रेजिस्टेंस यहाँ पे. एक माइक्रो बाइंग लेवल यहाँ पे है विच इज 17,000 जो राउंड नंबर है. यहाँ पे हो सकता है बाजार एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाना शुरू करे, बट सबसे बेहतरीन और जो वैल्यू बाइंग लेवल है दैट इज नियर the 16,700 16,800 level for a potential move towards 18,000 level, where the major resistances are lying ahead. So I expect this market to remain bullish for at least next 2 weeks time frame, and any big decline that comes, it's a buying opportunity for 18,000 as a target. Now what is the plan for tomorrow's session? See, tomorrow the going bias looks certainly bearish. We have, almost a B-shaped profile over here. So not exactly a B-shape, but yes, two events of selling, and this was the initiating selling that came on Friday. So there is a certainly some continuation, and this is the excess, this is the tail over here. There is a pending gap, there is a missed VWAP, there is a VPOG at 16,900 on the futures. So everything tells me that yes, there should be some selling tomorrow that should come. So based on this profile, based on this context, फॉर टुमारो सेशन मैं समझता हूं कि कल का जो एक मॉब लेवल मैं रखना पसंद करूंगा दोस्तों, वो होगा, अगर मैं स्पॉट के तौर पे बात करूं, अगर निफ्टी स्पॉट के लेवल्स की मैं बात करूं, तो आई थिंक वेरी इजीली यू कैन से 17,200 17,180 is going to be the deciding level. Below that, market is definitely due for a retest of 70,000, and second target will be 16,900, जहां पे मैं समझता हूं बाइंग इनिशिएट करना चाहिए समवेयर नियर 16,900. इंट्राडे अगर आप बाइंग इनिशिएट करते हो तो फ्यूचर्स पे, प्रिफरेबली फ्यूचर्स पे, इस लेवल को मैं 16,900, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ. ओके, सो दैट्स द प्लान फॉर टुमारो. गोइंग बायस बेरिश है जब तक ये मॉब लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इट इज बेरिश. Suppose if there is a gap up tomorrow, if there is a gap up tomorrow, still mob level के ऊपर sustain करेगा तो ही हम long trade करेंगे. Okay, and one more thing, because there is a bearish engulfing candle, it is natural to assume कि काफी लोग जो है bearish हो चुके होंगे मार्केट में, obvious सी बात है.
But suppose if there is a gap up opening above 17,200, around 17,200 levels, तो मार्केट को वॉच करना बहुत ज़रूरी है. मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड आप लीजिएगा, बिकॉज ये एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रेड हो जाएगा. काफ़ी लोग इसे जो है लॉन्ग साइड में नहीं प्ले कर पाएंगे, एंड मार्केट नोज दिस थिंग वेरी वेल. सो मार्केट जो है एक सॉर्ट ऑफ अ बेयर ट्रैप यहाँ पे बना के मार्केट 440, 17,440 का जो लेवल है ये मार्केट स्केल अप कर जाएगा. ठीक है. सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, आप लॉन्ग करते हो, सपोज आप मॉब लेवल के ऊपर गैप अप हुआ है, आप लॉन्ग कर रहे हो, सो कीप इन माइंड कि आपका इस ट्रेड पे स्टॉप लॉस जो है बाय डिफॉल्ट आज का जो बॉटम है ये हो जाएगा, एंड दैट इज समवेयर नियर 17,080, 17,050. तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और मेरे ख्याल से यही कल की एनालिसिस होगी. बहुत ही सिंपल डे है. अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सेल ऑन राइज आप कर सकते हो. दीज विल बी द टारगेट्स ऑन द लोअर साइड. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मैं समझता हूँ कल के दिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा. ट्रिकी इसलिए बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू फॉल beyond 35,600 level tomorrow. I expect Bank Nifty to come down, yes, near 35,600, 35,500, but I expect Bank Nifty to start taking support and bouncing off. So जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने एक बेरिशनेस की शुरुआत की थी, एंड निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी वाज होल्डिंग अप, निफ्टी जो था थोड़ा स्ट्रांग था, बट बिकॉज ऑफ दिस बैंक निफ्टी पे प्रेशर क्रिएट हुआ और निफ्टी भी डिक्लाइन हो गया. इसी तरीके से बैंक निफ्टी डिक्लाइन के बाद बैंक निफ्टी विल बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट अ कम बैक रैली. जिस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सेलिंग की शुरुआत की, उसी तरीके से बैंक निफ्टी राइज की भी शुरुआत करेगा. सो लेवल क्या होंगे? सी इट्स वेरी सिंपल. एज ऑफ नाउ जो भी हमारी क्लोजिंग हुई है इसके हिसाब से 36,278, दिस इज द क्रिटिकल लेवल फॉर टुमारो सेशन. ये फ्राइडे का ओपनिंग लेवल था. आज का यहाँ से जो है एक सेलिंग की शुरुआत हुई है. सो फ्राइडे की ओपनिंग, मंडे की सेलिंग, ये दोनों जो है इसको हम मिलाएंगे तो ये क्रिटिकल लेवल बनता है कल के लिए. सो फॉर टुमारोज सेशन लेवल तो मैं बताता हूँ, मैं सिनेरियोज भी आपको बताऊंगा, वो बड़े मजेदार होंगे. मॉब लेवल जो होगा कल के लिए वो होगा 36,280. बिलो दिस क्लियर कट शॉर्ट है, और पूरा गैप फिलिंग का हमारा टारगेट होगा जो कि 35,600 के आसपास होगा. ठीक है. दूसरा भी एक टारगेट है. सपोज मार्केट अगर ज्यादा बेरिश होता है तो 200 पॉइंट नीचे 35,400 के आसपास ये आपका सेकेंड टारगेट होगा. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज near 35,500 we have the 200-day moving average, the 233 moving average somewhere in this slab. 35,400 से लेके 35,500 के स्लैब में स्पॉट लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ. सो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे यू नीड टू वॉच फॉर सम प्राइस एक्शन बेस्ड रिवर्सल, एंड वंस यू स्टार्ट टू ट्रेड अबाउट द वी वैप, आई थिंक वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए. जो बॉटम बना होगा इंट्राडे दैट शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी अगेन 36,280. सो कल का दिन और परसों का दिन बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू माइट एंड अप गेटिंग अ शॉर्ट ट्रेड ऑल्सो फॉर दिस एंटायर target of 35.5, and probably you will also get a long trade from 35,700 sort of level towards 36,300 and followed by higher levels also. So बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए मैं समझता हूँ कल का दिन, परसों का दिन, एंड मे बी इवन थर्सडे ऑल्सो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आपको दोनों साइड के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं समझता हूँ इस वीक में कम से कम आपको 4 दिन में 1,000-1,200 पॉइंट्स आपको इसमें मिलना चाहिए. सो दैट इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो सेशन. Keep in mind that we have the 233 moving average and the 21-day moving average placed at 35,700. So ये जो लेवल है ये एक क्रिटिकल लेवल है 35,700. सो इंट्राडे इसके नीचे प्राइस एक्शन जाएगा, and then once it starts to come up, that will be the time to take a long trade. So जिन्होंने भी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग वगैरह जो अटेंड किए, इसमें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे एक हाइयर टाइम फ्रेम का जो लेवल होता है ये हम लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं. सो इस सेम टॉपिक का कल एक एप्लीकेशन हमें देखने को मिल सकता है 35,690. दिस इज दैट हाइयर टाइम फ्रेम लेवल which you need to watch on lower time frame. A break below this level followed by reclamation of this level, that is where your long trade will be
initiated with this as a stop loss for target of 36 to 80, and thereafter higher levels should also come. Okay, let us take some stock queries. I'm done with the Nifty and Bank Nifty analysis. कल का वीडियो जो है डेफिनेटली एक बार वापस से आप रेफर कीजिए, because in yesterday's session I have explained all the perspectives of this market in the near short term. So that is a must watch video for all market traders. इस समय गौरव कुमार, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट. जय श्री राम, जय गौ माता. एंड लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज. सो कौन से स्टॉक क्वेरीज लेंगे? पहला जो सवाल मेरे सामने दिखाई दे रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का. सो टाटा कंज्यूमर, आई थिंक ये स्टॉक मैं कल भी ले चुका हूँ. सो टाटा कंज्यूमर इस समय बुलिश काउंटर है, जैसा कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें 720 की कोई भी डिक्लाइन आती है इसे हमें बाय करना चाहिए. 720 से लेके 700, दिस इज द बाइंग जोन, दिस इज वेयर यू शुड बाय. कीप अ स्टॉप लॉस 650 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 820 से लेके 850 के आसपास. दैट इज वेयर you should see this stock going in the near future. Okay, and probably it will make sort of a inverse head and shoulder pattern also, ये भी हो सकता है. so हालांकि इसे मैं इतना वेटेज नहीं दूंगा, बट एक बात बता रहा हूँ. so ये व्यू है टाटा कंज्यूमर पे. ओके, पेट्रोनेट LNG. See, Petronet LNG, last time when we discussed, the stock was in a very strong bear grip, trading below the 233 moving average, trading below a well-defined declining trend line resistance, and having broken the long-term trend line support area. So this stock is a clear-cut sell-on rise counter. ये मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ, because the charts are themselves self-explanatory. इसमें कोई ओपिनियन की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है, कोई जजमेंट नहीं है, इट्स अ फैक्ट. सो प्योर सेल ऑन राइज काउंटर है. ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है इन्फोसिस के ऊपर. सो लेट अस टेक इन्फोसिस, TCS, इन्फोसिस, विप्रो. सो इन्फोसिस ने मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले और yesterday ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस टॉप के आसपास आ चुका है. सो वेन एवर एनी स्टॉक comes near the previous swing high or it makes a new swing high, as per my policy, we book the trades over there at least 50 to 60%, rest trail to cost or do some treatment for that stock. So मेरे ख्याल से इन्फोसिस में इस समय कोई दिलचस्प और लाजवाब और सही ट्रेड नहीं है. इस समय मैं समझता हूँ कि अगर आप लॉन्ग्स कैरी कर रहे हो तो 2 विकल्प आपके सामने, या तो इसे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करो, या फिर यहाँ पे अगर थोड़ा और एक और ड्राइव आता है तो डेफिनेटली एक बार निकल जाना चाहिए. ठीक है. नाउ if I look the monthly chart of Infosys, it is looking some sort of a consolidation. 1680 1650 का फ्लोर है एंड अपसाइड में 1900 के आसपास ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है. अब जब तक ये स्ट्रक्चर या तो अपसाइड में ब्रेकआउट ना दे या डाउन साइड में एक ब्रेकडाउन ना दे, ये इसी रेंज में चलने वाला है. ठीक है. एंड आई थिंक बेटर ये होगा कि इसमें से प्रॉफिट बुक जो है कर लिया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे वापस से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिले. या Adani Ports. Adani Ports is one of the few stock that I had recommended last time when the markets were declining. बहुत ही इसमें क्लियर कट, इसमें अदानी इंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट्स में जो है हमने लॉन्ग ट्रेड आपको रेकमेंड किया था विद अ वेरी वेरी लो रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड. सो अदानी पोर्ट अगर हम देखें तो पिछले दिनों में ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली की है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली हो चुकी है. मैं समझता हूँ कि अगर आपकी परचेस प्राइस अगर नीचे है तो आप इसे जो है थोड़ा होल्ड करिए. आई थिंक वंस वी स्टार्ट टू ट्रेड अबाउट 750 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू शूट नियर 800 लेवल्स. ओके, एंड अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो मैं एक लेवल दे रहा हूँ 698, यानी 700, 690 से 700 का लेवल है. यहाँ पे आप वापस बाय कर सकते हो. एंड सेम स्टॉप लॉस होगा 650 640 का, and again the targets will be same. So what this stock is doing is this stock is trying to negotiate with the resistances by making shallow bottoms, okay, as compared to the previous bottom. So if you see
The last time the stock declined this much, and thereafter it is declining, lesser as compared to the previous instances. So just a matter of time when it finally negotiate with this, and it starts to break out and reverse the texture on the higher side. This is how these stocks break out. Notice the volume. There is no major volume on the sell side of any swing, right? So the only instance of larger institutional volume is in this part and in this part, right? So the base comes at 650 level. So if these were institution based selling, then the stock shouldn't have been sustaining above 650 since last 13 months cycle. So it shows that yes, somebody over here liquidated or maybe booked some partial profit booking यहाँ पे हुआ है. And this is where, in this decline, the other party has lapped up the shares, and since then it is just churning rotation that is going on. So there is no sign of distribution at all. This is perhaps a sign of reaccumulation. And as I see, it can also become a triangle pattern, and which should break out on the higher side for a target of 1000, 1100, 1200, 1200. Next query है वेदांता पे. So I hope I have explained Adani Ports from a volume perspective, institutional accumulation, distribution perspective. Vedanta. So, how many people remember that I was too much bullish on Vedanta? And इस स्टॉक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश काफ़ी पहले से ही हूँ. And if you remember why I am bullish, because of the higher time frame charts. Now look at the beauty of this Vedanta monthly chart. Okay, जिन्होंने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है ध्यान से, आपको पता होगा कि इस कैंडल में ही सारा सीक्रेट छुपा हुआ था. ओके, जिन्होंने भी मेरी ट्रेडिंग अटेंड की है, प्राइस एक्शन, आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर पता था कि क्या होने वाला है इस स्टॉक में. ठीक है. सो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, लिख के बताइए कि आपको समझ में आया है कि इस स्टॉक में क्या हुआ है. ठीक है. नाउ दिस स्टॉक हैज गिवन अ फ्लैग ब्रेकआउट, that is something else, and now the target is 500 level positionally. इस स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करो. इंट्राडे वॉलिटिलिटी एंड शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को इग्नोर कीजिए. स्टॉक इज वेरी ब्राइट एंड स्टॉक हैज लॉट ऑफ रूम टू गो ऑन द अपसाइड, एंड 520 इज लाइक बेयर मिनिमम. स्टॉक काफ़ी और भी काफ़ी ऊपर जाने की ताकत रखता है. जिन लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है, तो आप इसमें जो है बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए. जब भी ये स्टॉक अपने 50 डीएमए 60 डीएमए के बीच में आता है, उस समय इस स्टॉक को बाय करना चाहिए. और पिछला जो स्विंग है, ये जो स्विंग बना है, जैसे इस समय पिछला स्विंग है 355. सो नेक्स्ट टाइम सपोज ये स्टॉक आता है अराउंड अबाउट से 380 पे अगर आता है, तो 380 पे बाय करेंगे. और पिछला जो बॉटम बना है 350, ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 520 की टारगेट इंटैक्ट होगी हमारी. ठीक है. जब तक 520 नहीं जाता है, इस बिहेवियर को फॉलो करते जाना है, क्योंकि मार्केट की वही बिहेवियर है. तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. जो हो रहा है बस उसमें पार्टिसिपेट करते जाना है अपने एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से. हर्षल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट कंट्रीब्यूशन. दैट इज़ वेरी जनरस ऑफ यू. थैंक यू. वेलकम. कोल इंडिया एक नई क्वेरी के तौर पे आ रही है सामने स्क्रीन पे. कोल इंडिया, सी कोल इंडिया लिमिटेड अगेन एनर्जी प्ले है, and as we have been seeing, because of the geopolitical crisis and a war like situation, energy, agriculture, pesticides, fertilizers, these are the themes. Minerals, resources, metals. तो थीम को पहचानो, थीम को पहचानो, क्योंकि बाजार चेंज हो चुका है पिछले 2 महीने में. ठीक है. बुल मार्केट की शुरुआत कोरोना अगर बॉटम से हुई है, तो पहला जो लेग था ये पीक आउट हो गया. फिर हम करेक्टिव फेज में इस समय हैं, और इस फेज में जो नए सेक्टर्स एक विनिंग सेक्टर्स के तौर पे आ रहे हैं, उन सेक्टर्स पे ध्यान देना है, बिकॉज दैट इज वेयर द हाई बीटा मनी लाइज. एंड देन एट द सेम टाइम देर आर स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पे कोई बहुत बड़ा ऐसे मूवमेंट नहीं आएगा, बट दे विल गिव यू डिसेंट प्रॉफिट
विदाउट एनी हेडेक। ठीक है, तो दो थीम इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है। पहला एक है आपका हाई बीटा प्ले। ठीक है, दिस इज कमिंग ऑन द बैक ऑफ द जियो पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन दिस रशिया एंड द यूक्रेन थिंग। तो इसमें से अगर कोई स्टॉक्स मिले, तो आपको कैसे ट्रेड करना है कि अगर 100 रुपये हमारी इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, तो इसमें 10 से 20 रुपए, इसमें डेफिनेटली 10 से 25 रुपए के रेंज में डेफिनेटली इन्वेस्ट होना चाहिए विद अ वाइडर स्टॉप लॉस फॉर अ मल्टी बैगर सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न। और बाकी जो 75 बचता है ये हमें सेफ बेट्स पे डालना है विथ लाइक लिमिटेड स्टॉप लॉस एंड लिमिटेड गेन्स। तो ये हमारा एक अच्छा एक मिक्स हो जाएगा। दिस विल बी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, दिस विल बी लो रिस्क लो रिवॉर्ड। तो 1/4 रेशियो के हिसाब से सही हो जाएगा। रही बात इस स्टॉक की, कोल इंडिया, तो स्टॉक डेफिनेटली बुलिश है। ओके, एंड आई बिलीव स्टॉक में अगर कोई भी डिक्लाइन आती है तो इसे बाय करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बायर हैं तो इसे होल्ड करिए। एंड आई थिंक स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर 220 लेवल। काफ़ी काफ़ी हाई चांस है दैट स्टॉक जो है 220 जाने के लिए तैयार है। ठीक है, एक बार इस स्टॉक का वीकली चार्ट अगर हम रेफर करें, मंथली एंड वीकली चार्ट, नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ द वीकली चार्ट। इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखो। सी, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, सो कोल इंडिया सिंस इटर्निटी, यानी कम से कम पिछले 6 साल की अगर हम बात करें, 6 नहीं 7 साल, तो 17 अगस्त 2015 के बाद से ये स्टॉक कभी भी अपने 200 या 233 मूविंग एवरेज ऑन द वीकली, it has never survived, right? And we are coming here for the second time. So we have a very good floor over here at 165. We also have a floor at 177. So this becomes your buying zone. Okay. And 210, once we hit the 210, then further targets for 300 will open in the near future. ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना कि ये एक बड़ा गेम बनने वाला है बॉस। कोल इंडिया बड़ा गेम बनने वाला है। इस समय ये बुलिश है। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सरप्राइज करेंगे, जो लैगार्ड्स रहे हैं, बट राइट नाउ दे आर टर्निंग बुलिश। टाटा कंज्यूमर सर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके प्लीज देखिए। टाटा कंज्यूमर में आप बहुत ऊपर बाय कर लिए हो, ये क्लासिक मिस्टेक है जो मैं पिछले 6 महीने से समझा रहा हूँ कि नहीं करना है इन एनी लेग ऑफ दिस मार्केट। ठीक है, ये क्लासिक मिस्टेक है। Okay, Aurobindo Pharma, see, it's a bearish counter, and right now what you are witnessing is just the counterback rallies that we have witnessed in the past also. Having said that, I see that recently this stock is being accumulated by some big guys, and that is in a very early stage, कोई major accumulation नहीं है, but yes, the selling pressure is getting dried up. Now in the short term I expect stock to go till 740 maximum. That is where the resistance comes, and that is where I think you should exit. So अगर आपने नीचे buy किया है, then you can hold, but don't be extremely bullish. Stock is in a complete downtrend. 740 is the technical level. Now where am I watching this stock? See, this is the line that I'll be watching. So going forward, I think the stock will not make any like significant price lows. I think uh, we are good at 550 sort of a level price wise, बट आई थिंक टाइम वाइज अभी से काफ़ी काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि स्टॉक में अभी काफ़ी काम है प्राइस वाइज, सॉरी टाइम वाइज। आई थिंक मोर और लेस 550 विल बी द फ्लोर फॉर दिस स्टॉक, but yes, certainly it needs to overcome this declining structure, and it will do so in a in some time. So it will do so in future, and once I see this stock coming out of this, it's only then I will become bullish in this counter for a big targets from a investment perspective. Till then, it's all trading bets. That's it. Aurobindo Pharma डिटेल एनालिसिस इस समय मैं कर रहा हूँ। सो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो अगेन दैट रेजिस्टेंस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। गुलशन पॉली नेक्स्ट क्वेरी है। गुलशन पॉली दोस्तों,
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। जिन्हें भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है एज अ स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रेनिंग की डेट आ चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुलशन पॉली, सी दिस स्टॉक इज स्टिल डिफेंडिंग द 200 डे मूविंग एवरेज, एंड इसमें मैं इसी प्रिंसिपल को एडवाइस कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, एंड सिंस देन द स्टॉक हैज ऑलमोस्ट बिकम 10 टाइम्स। नाउ ट्रेल करो, ठीक है, टेक अ शॉट एंड ट्रेल टू 260 राइट नाउ। दैट्स अ वेरी बिग ट्रेल, बट आई थिंक टेक अ शॉट एट इट, ठीक है। तो 260 पे इस समय ट्रेल करो। अगर ये स्टॉक 320 के नीचे आता है तो एक बार फॉलो अप जरूर लेना है। नेक्स्ट क्वेरी है बाटा इंडिया से। बाटा इंडिया के बारे में क्या बताऊं मैं। बाटा इंडिया अगर आपको याद होगा तो ये एक इन्वेस्टमेंट काउंटर ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था समवेयर इन द मंथ ऑफ लाइक दिसंबर, एंड सिंस देन इसमें सिर्फ बाइंग की एडवाइस जो है दी गई है। सो बाटा इंडिया इज अ बुलिश काउंटर, एंड आई थिंक बाटा इंडिया यू शुड होल्ड ऑन द लॉन्ग साइड। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 2020 एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। आई थिंक इट शुड गो हायर देन दैट। आई थिंक इट शुड, यस, 2020 2050 विल बी रेजिस्टेंस डेफिनेटली। ओके, सो आई थिंक इन दी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा यहाँ पे वॉच करना, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना। हाँ, अगर कोई करेक्टिव लेग वापस आता है तो इस स्टॉक को वापस से जो है 1800 के भाव पे, 1900 के भाव पे, प्रेफरेबली 1850 एज अ एवरेज प्राइस इज अ वेरी गुड परचेस, ठीक है। सो 1850 बहुत ही एवरेज परचेस होगा, और मैं समझता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस हम 1720 रखेंगे, एंड नेक्स्ट राउंड लेट अस सी वेयर इट गोज। So probably it can make a inverse head and shoulder pattern also, something like this going forward. Let us see if that happens. ओके, नेक्स्ट क्वेरी जो है वो है लॉरस लैब्स। तो इस स्टॉक को एक बार चेक करते हैं, काफी दिनों बाद ये स्टॉक आ रहा है सामने। सो टुडे इट इज ट्राइंग टू break out above the big resistance of 590. Why it's a big resistance? Because this is where the entire structure became very bearish, and since it broke 590, it declined very badly towards 400 and 420 level. So I think the stock is still not very bullish as such, सिर्फ टेक्निकल पुल बैक है मैं समझता हूँ। एंड यहाँ पे बी कॉशियस, इट माइट गो टिल 640, बट देयर इज नो अश्योरेंस। सो इफ you have bought at a deeper level, it is good, you have some cushion, but if you're buying here, then I think it's a very pathetic trade, ठीक है। So overall I think you can trail below 550 for a target of 640, that's it। इसमें और ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है इस समय। और अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो हायर टाइम फ्रेम पे भी एज सच इस समय कुछ नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे सुंदर ट्रेड, 440 पे बाय करो, 530 पे निकल जाओ, ठीक है। सो ये ट्रेड पिछले आई थिंक 4 महीने से यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लेवल्स में दे रहा हूँ, 440 एंड 570, आउट ऑफ विच 530 इज अ रीजनेबल लेवल वेयर यू कैन एग्जिट। अभी रिसेंटली आई थिंक इट हैड कम नियर 440 430 लेवल्स। सो इस समय एसबीआई को हम किस तरीके से देखते हैं, यही तरीका होगा, लाइक वी विल सी 540 sort of a level that should come in near future. Yeah, that's it। एंड अगर किसी को इसमें फ्रेश एंट्री लेना है तो 465 का लेवल जो है एक अच्छा लेवल है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम इसे बाय कर सकते हैं 465 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 530 540, एंड स्टॉप लॉस जो है 440 435 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दिस इज अ ट्रेड फॉर दोज हु कुड नॉट बाय इन पैनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेरी इज वोल्टास। वोल्टास समर वेकेशन या समर थीम के लिए प्ले करना चाहिए कि नहीं? फॉरगेट अबाउट द थीम, प्ले द चार्ट्स। सो वोल्टास इस समय, I believe Voltas में what is going to happen is sort of a Sipla in the making, in a sense that वोल्टास में क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले जो चीज़ एकदम श्योर है वो ये है कि 1130 एक सिक्योर्ड बॉटम है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वोल्टास लगभग 1300 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ओके।
दो चीजें क्लियर हो गई, 1300 का लेवल और 1130 का लेवल। नाउ तीसरी जो चीज वो ये है कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करे ना करे, जो भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली राउंड में ये स्टॉक को बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, वाई? बिकॉज दिस इज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड दिस इज लॉक्ड। ये ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक अब तब होगा जब निफ्टी जो है 16,600 के नीचे ट्रेड करेगा। ठीक है, सो इस हिसाब से वोल्टास को ऊपर ऊपर में बाय मत करना। अगर ऊपर में ब्रेकआउट ट्रेड हम ले रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कोई डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है, इट विल बी प्योर ऑन लक। सो सपोज अगर किस्मत आजमा रहे हो तो भी स्टॉप लॉस के तौर पे 1250 यूज करना इन दैट केस। सेकेंड केस, अगर इसे बाय ऑन डिप के एंगल से लेना है तो मैं समझता हूँ कि 1230 बहुत अच्छा लेवल है, 1230 पे बाय करना चाहिए। 1130 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड टारगेट में इसमें रखूंगा सीधे 1500। दैट्स इट। सो couple of tradable ideas I've shared for Voltas, and I think it's a very nice stock, a very good chart in the making। इस स्टॉक को मैं ऐसे भी देख रहा हूँ कि इस समय एक मुझे बुलिश ब्रेकआउट का पहला स्टेज दिखाई दे रहा है एंड एनी डिप दैट कम्स शुड बी बॉट फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑन द हायर साइड। इस तरीके से Havells India is the next query. Havells India. See, UPL, Havells India, these are all stocks which are actually strong. So Havells की अगर particularly Havells India की बात करें तो इस समय देखो ये स्टॉक में दो स्टोरी इस समय। पहली स्टोरी ये है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में जो है ये थोड़ा अभी बेरिश रहेगा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी गॉट अ ओवरथ्रो, but I think this stock will not give a runaway move for next 3 months। ठीक है, या एटलीस्ट टिल अर्निंग्स, या एटलीस्ट 15 जून तक। सो इस समय ये स्टॉक को आपको एक ट्रेडेबल बेट के तौर पे लेना होगा। तो इसमें बाय ऑन डिप तो डेफिनेटली करना है। एनी मूव टिल 1100 इज अ बाय ऑन डिप। Target stop loss 1,000 rupees, and first target should be your 1250 levels. This is where I think 1250, 1300 at best, this is where the sellers will come again, and probably you should get another leg of a decline into this cycle, next 3 month cycle, and probably then we can get some sort of a bottom. Now why I don't like this bottom, because there is no climactic activity। कहने का मतलब ये है कि बॉटम कब बनता है? बॉटम तब बनता है जब कोई एक क्लाइमेक्टिक एक्टिविटी हो। तो ऐसे बॉटम पे हम जो है भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो इसीलिए इसे हम ट्रेडेबल बेट के तौर पे लेंगे फॉर द टाइम बिंग। चिराग रोचलानी, डीएलएफ। ठीक है, स्पैम मत करो भाई प्लीज। हो गया, डीएलएफ ने लूट लिया। देखो डीएलएफ एक ऐसा काउंटर है जिसे आप शॉर्ट करके कम से कम एक फ्लैट तो खड़ा कर सकते हो। ठीक है, सो डीएलएफ जो है, जब ये स्टॉक पैदा हुआ था तब से इसे हम ट्रेड कर रहे हैं। सो डीएलएफ में अगर आपने चैनल को रोज देखा होता तो आपको पता होता कि डीएलएफ 425 रुपए से ही हम शॉर्ट साइड में प्ले कर रहे हैं। 425 से ये बेचारा 300 आ गया। इमेजिन 125 पॉइंट्स डिक्लाइन। सो राइट नाउ स्टॉक इज अ परमा बेयर काउंटर। एवरीबडी जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है। So right now, at best, you will see rising wedge sort of a structure. At best, 400 के लेवल पे आएगा तो आएगा, and then again we will hammer for 200, 220, that sort of a level. सो इस स्टॉक में ये पूरा बेरिश है। अगर आप अभी इसमें लॉन्ग है देन आई थिंक यू नीड लॉट ऑफ लक, बिकॉज इट्स अ परमा बेयर काउंटर। अगर लॉन्ग करके रखा है तो 340 सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस यू कैन यूज, एंड इट्स अ सेल ऑन राइज काउंटर इन शॉर्ट। ठीक है, सो जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है उसी तरीके से यहाँ अगर ये मिलेगा, जब भी मिलेगा तो हम इसका इंतज़ार करेंगे।
and we will welcome it with big shot over there for target of 222. ठीक है, सो ये व्यू है आपका डीएलएफ पे। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा जो है, इट वाज लुकिंग गुड दिस टाइम अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। राइट नाउ आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा सैचुरेशन फेज में। ओवरऑल आई थिंक अगर आपने कैश में बाई किया है तो होल्ड करो, कोई इशू नहीं है। स्पेशली अगर आपने यहाँ बाई किया है तो कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस आपका 1330 आपको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट जो काउंटर है वो है एल टी आई, लार्सन एंड टूब्रो इंफोटेक। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, सो इफ यू आर विलिंग टू join the group you need to WhatsApp and book your seat. All right, LTI. See, LTI right now it is slightly, I would say, going for a pullback. So try to buy this stock near 5600, stop loss 55, and target होगा 6600 के तौर पे। डेल्टा कॉर्प, सी डेल्टा कॉर्प अगला क्वेरी है। डेल्टा कॉर्प, सो आईटी, सॉरी आईटी कह रहा हूँ, रियल एस्टेट प्ले है। डेल्टा कॉर्प हैज गिवन अ मैसिव ब्रेकआउट, सो आई थिंक दिस स्टॉक राइट नाउ is definitely headed for higher targets. इसमें अगर फ्रेश एंट्री मैं सजेस्ट करूं तो इन फ्यूचर समवेयर, अगर ये इन फ्यूचर, अभी तो नहीं आएगा बट इन फ्यूचर सपोज अगर ये स्टॉक आपको इन फ्यूचर अगर ये 290 280 के आसपास दिखाई देता है तो इस स्टॉक को जो है बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 236 होगा एंड टारगेट जो है कम से कम 400 के आसपास का टारगेट होगा। ठीक है, नाउ right now as I speak stock has given a breakout, so tomorrow if the stock hits 340 just exit for the time being. And why? Because it's a big range candle with a big volume, so as a policy we always exit. Okay, Naveen Fluorine. नवीन फ्लोराइन लिमिटेड, ठीक है, स्टॉक अपने पुराने टारगेट्स 4300 400 पे आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। RIIL इस समय जो है एब्सोल्युटली रेंज बाउंड काउंटर है। फिलहाल 200 EMA का अच्छा सपोर्ट है, सो अगर आपने नीचे बाई किया है तो ठीक है, ऊपर फ्रेश मत बाय करना। नीचे अगर बाइंग है अराउंड अबाउट 700 के लेवल पे देन इट इज फाइन। आप इस बॉटम के साथ इसे होल्ड कर सकते हो। प्रॉब्ली यू कैन सी 875 वन सेकेंड। कुछ खास ये स्टॉक मुझे नहीं लगता। ठीक है, टाटा मोटर्स पे अगली क्वेरी है। टाटा मोटर्स अगर बाई किया है आपने तो इस समय थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, एंड टाटा मोटर्स जो है अभी 462 के स्लैब में जाना चाहिए। टाटा मोटर्स में एक और फ्रेश ट्रेड में देता हूं कि अगर टाटा मोटर्स आपको 400 पे दिखाई दे तो इसे बाय करना चाहिए। 370 का स्टॉप लॉस, टारगेट 460 480। सो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर व्यू है टाटा मोटर्स पे। SRF, SRF शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स वैसे 600 का टारगेट है। SRF इज अगेन अ मैसिव काउंटर। काफी बार इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी बुलिश काउंटर। सो SRF एज ऑफ नाउ इट इज अप्रोचिंग द प्रीवियस हाई, सो प्रॉफिट बुकिंग करिए, ब्रेकआउट वगैरह करे, प्रॉफिट बुकिंग करो। 2800 वगैरह जाना चाहिए, सो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करना चाहिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, राइट नाउ इट्स अ 50-50 काउंटर, डबल टॉप बन चुका है। कुछ खास इसका चार्ट मुझे नहीं लग रहा है। देयर इज नो ट्रेड फ्रॉम माय साइड। अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको 460 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। SRF 2800 जाने वाला है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना। टाटा पावर की अगर हम बात करें, सो लेट मी जस्ट चेक द चार्ट अगेन। टाटा पावर, see as of now Tata Power and Tata Motors, all these are looking pretty similar to me. now Tata Power में एक चीज मैं बताता हूँ कि इस समय ये स्टॉक जो है आपका 225 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इसमें दो ट्रेड पॉसिबल है एकदम शॉर्ट टर्म में। या तो इसका ब्रेकआउट आप बाय करो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इसे बाय करो अजम्पशन पे, यानी 220 पे बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ 195 का,
and keep it for some time. If we get a breakout like this, तो आपका profit में आ जाएगा, trail to cost आप कर दोगे, hold it for eventual breakout for 270. That's it. ये एक ट्रेड है इसमें. APL LTD. Okay, last talk for tonight. Alembic Pharmaceutical. एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल ठीक है, अभी होल्ड करो, 810 इसमें आना चाहिए. ठीक है. टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, these are all bullish counters. So Tata Steel, I am bullish. Tata Steel should go near 1400, 1350, 1400 तो इसमें आना चाहिए. GM Infra, last query आज के लिए GMR Infra है actually. So GMR Infra is a bearish counter. ये स्टॉक जब तक 40 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, स्टॉक जो है बेरिश है. ठीक है. So that's all for tonight. Thank you so much guys, and चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. And all those who are interested in registering for the next training, you can do so. Thank you so much. Take care. Wish you all the best. Good night. Jai Mata Di.